امریکی ٹی وی CNN کو کم لوگ دیکھتے ہیں، وہ غلط باتیں پھیلاتا ہے۔ دی ہیگ میں جاری نیٹو سمٹ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران پر حملوں سے متعلق حالیہ رپورٹ محض ابتدائی جائزہ تھی، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس گئے، ایران نے جوہری تنصیبات بحالی کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایران کو کسی صورت یورینیم افسودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران اب طویل عرصے تک ایٹمی مواد نہیں بنا سکے گا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کی تباہی جنگ کا خاتمہ تھا۔ ایران میں اہم کامیابیاں حاصل کی جو سب کے لیے اہم ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ بندی سے غزہ جنگ بندی میں مدد ملے گی۔ امریکی حملوں سے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امریکی میڈیا کے مطابق افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ نہیں ہوا، تہران کا ایٹمی پروگرام چند ماہ پیچھے چلا گیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان اور اس کے طویل مدتی اثرات کا جائزہ جاری، مزید معلومات آنے پر یہ نتائج تبدیل ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں فردو، نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب ایرانی سیکیورٹی سپریم کونسل کی منظوری سے ایران آ سکیں گے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، نیٹو نے ایران پر امریکی حملے کو حمایت کر دی۔ سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت خطے کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔ نیٹو نے رواں سال اپنے دفاعی اخراجات میں $10 کھرب کا اضافہ کر دیا۔ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے نہیں دیں گے، امریکی صدر کے خصوصی مندوب برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف نے واضح کر دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ ایٹمی پروگرام پر مستقبل میں کسی بھی معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم افزودہ کرنے نہیں دے گا۔ امید ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان جامع امن معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکی حملے کا مقصد تہران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا تھا اور صدر ٹرمپ کو علم تھا کہ حملہ کس وقت کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا، معاہدہ کشیدگی ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان خطے میں سلامتی اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے سعودی کردار کے معترف، کہا امریکہ کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا چینی ہم منصب وانگ سی سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ عباس عراقچی نے ایران کے موقف کی حمایت کی اور حملوں کی مذمت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے کو ایران کی قومی سلامتی کے دفاع کا حصہ قرار دیا۔ پاکستان کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم، آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے رابطے جاری رکھے، ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے، ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
तुर्क सदर ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने नेटो इत्तेहाद की डिटरेंट पावर को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात नीदरलैंड्स के बादशाह की जानिब से नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान के एजाज में दिए गए इशाये के दौरान हुई। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ज़राई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। ज़राअत की तरक्की के लिए बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ज़राई शोबे में इस्लाहात, आसान ज़राई कर्ज़ों तक रसाई के हवाले से तजावीज़ पेश। कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना ख़ारिज के साथ मुकाबले में शहीद मेजर सैयद मुइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला सिविल और अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर मुइज़ अब्बास शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। खूने शहीद हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। शहीद मेजर मुइज़ अब्बास की मैयत उनके आबाई इलाके चकवाल रवाना कर दी गई है। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुहर्रम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के अलावा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। जिला मलीर में कार्रवाई हसास इदारे और पुलिस ने की। चारों मुबैना एजेंट्स को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। SSP शुएब मेमन कहते हैं, गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के कब्जे से हसास मकामात की दस्तावेजात और दीगर मटीरियल बरामद हुआ। मुल्जिमान दुश्मन मुल्क को हसास मालूमात फराहम करते थे। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर दर्ज तमाम मुकदमात और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, टैक्स दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई से कबल टैक्स वाजिबुल अदा होने का तयन और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। FBI को मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का 5 साला LLB प्रोग्राम की मुद्दत 4 साल करने का हुक्म। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत के दौरान अदालत ने बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म कर दिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि लॉ कॉलेजेस का मेयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। हमारा खैबर पख्तूनख्वा का बजट बहुत जबरदस्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने IMF के तमाम मुतालिबात पूरे किए। हमारे बजट में बाद में भी तब्दीली हो सकती है। कुछ लोग एजेंडे के तहत साजिश कर रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है। बजट के हवाले से मैं बानी PTI के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। बानी को कोई माइनस नहीं कर सकता। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलूचिस्तान के 2 मंसूबों के लिए जारी की गई।
बलूचिस्तान में बच्चों की तालीम और पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए कर्ज मंजूर किया गया। मानसून बारिशों ने रंग जमाना शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, गलियात और ठंडियानी में भी बादल बरस पड़े। गुजरांवाला, गुजरात और गोजरखान में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। सवात, मेंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। आइंदा 24 घंटे में सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, अर्बन फ्लडिंग और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। गिलाफ़े काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब आज होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 200 माहिर कारीगर शरीक होते हैं। तकरीब नमाज असर के वक्त पुराने गिलाफ़े काबा के सुनहरी हिस्सों को हटाने से शुरू होगी। नया गिलाफ़े काबा नमाज इशा के बाद तब्दील किया जाएगा। इसराइल ने मजलूम और बेबस फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। गजा में सहूनी फौज की इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग और गोलाबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज और ड्रोन्स ने गजा में 86 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई। जनूबी गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 7 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल। पाक भारत और ईरान इसराइल जंग रोकने में अहम किरदार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए बाज़ाब्ता नामजद कर दिया गया। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बिटी कार्टर ने नोबेल कमेटी को सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए खत लिख दिया। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत में जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। करारदाद डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन ने ईवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद के हक में सिर्फ 79 और मुखालफत में 344 वोट पड़े। अमरीकी सदर का कहना है कि मवाख़ज़े की कोशिश कर लें, डेमोक्रेट्स तारीखी गैर मकबूल हो चुके हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात। पाकपतन में उर्स के चौथे रोज सजादा नशीन ने ज़ायरीन में तबरकात तकसीम किए। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। माइकल जैक्सन के मुनफरिद डांस स्टाइल ने आलमगीर मकबूलियत हासिल की। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे।